Yes, class. In our previous lecture, we were discussing about the allotropes of phosphorus, and I already told you that phosphorus, it shows many allotropes like red phosphorus, black phosphorus, white phosphorus, और उसमें खाली जो white phosphorus रहता है, that is white phosphorus, it occurs naturally. It occurs naturally. और आपने देखा है कि रेड फोस्फोरस व्हाइट फोस्फोरस से बनता है, वैसे ही जो ब्लैक फोस्फोरस होता है वो रेड फोस्फोरस और व्हाइट फोस्फोरस से बनता है. अभी हम बात करेंगे ब्लैक फोस्फोरस की, लेकिन जो व्हाइट फोस्फोरस है इट अकर्स नेचुरली. नाउ अगर हम बात करते हैं ब्लैक फोस्फोरस की, अगर हम बात करते हैं ब्लैक फोस्फोरस की, अगर हम बात करते हैं ब्लैक फोस्फोरस की, इट हैज टू फॉर्म्स. इट हैज टू फॉर्म्स. एक होता है अल्फा ब्लैक फोस्फोरस, अल्फा ब्लैक फोस्फोरस, और एक होता है बीटा ब्लैक फोस्फोरस. एक होता है बीटा ब्लैक फोस्फोरस. अल्फा ब्लैक फोस्फोरस, it is prepared by heating red phosphorus. It is prepared by heating red phosphorus around 803 Kelvin in a seal tube. In a seal tube. Then you get alpha black phosphorus. Alpha black phosphorus. While beta black phosphorus is prepared if white phosphorus is heated. White phosphorus is heated under high pressure. इसमें प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है. अंडर 473 केल्विन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड एट अंडर हाई प्रेशर. Under high pressure. Then what you get? You get beta black phosphorus. Beta black phosphorus. Alpha black phosphorus, it does not oxidize in air. It does not oxidize in air. It does not oxidize in air. So this is all about the black phosphorus. We have discussed about the allotropes of phosphorus. हमने बात कर ली, हमने रेड फोस्फोरस के बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली व्हाइट फोस्फोरस के बारे में बात कर ली है, हमने बात कर ली है ब्लैक फोस्फोरस के बारे में. Now we are going to discuss about the before discussing some of the important compounds of phosphorus, let's discuss about the oxo acids of phosphorus. Just note it down. Oxo acids of phosphorus. Topic is our oxo acid. ऑक्सो एसिड किसे कहते हैं ये आपको पता होगा.
ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो जो तीन अगर हम बात करें, पहले एक हमारा रहता है H3PO4, ठीक है, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, H3PO4, देन H3PO3, this is H3PO2. This is known as orthophosphoric acid or phosphoric acid. Orthophosphoric acid. Orthophosphoric acid. This is phosphorus acid. Phosphorus acid. Phosphorus acid is also known as phosphoric acid and hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid. It is also known as phosphoric acid. Phosphoric acid. It is also known as phosphoric acid. First, we will going to अगर हम इनकी प्रिपरेशन की बात करें, अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं पहले। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर्स की बात करूं, स्ट्रक्चर यू हैव टू रिमेंबर, this is the structure of phosphoric acid. This is the structure of phosphorus acid. And this is the structure of hypophosphorus acid. Okay? So, अब अगर हम बात करें, H वही रिलीज होते हैं जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच होते हैं। तो कितने H देगा? ये 3 H देगा। तो इट इज अ ट्राइबेसिक एसिड। इट इज अ ट्राइबेसिक एसिड। इट इज अ ट्राइबेसिक एसिड। और ये कितने H O से डायरेक्टली लिंक्ड है? 2 हैं। तो इट इज डाइबेसिक एसिड। It is diabasic acid. And what about this? खाली एक ही H डायरेक्टली इससे अटैच है, तो it is a monobasic. It is a monobasic acid. It is a monobasic acid. ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। स्ट्रक्चर पता रहेगा तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। एंड स्ट्रक्चर यू हैव टू लर्न। अगर हम बात करें तो orthophosphoric acid is tribasic acid, whereas phosphorus acid is diabasic acid, and hypophosphorus acid is monobasic acid. Just note it down. Structure and about the tribasic acid. Tribasic acid मतलब कितने H देगा? 3 H देगा। Diabasic acid मतलब कितने H देगा? H देगा। monobasic acid मतलब कितने H देगा? एक H देगा। और जो H डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच होंगे वही रिलीज होंगे। P से जो डायरेक्टली अटैच होगा वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है? और इसी चीज को हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अगर आप पूछेंगे व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, तो आप बोल दीजिएगा इट इज अ ट्राइबेसिक एसिड। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड, तो आप बोल सकते हैं इट इज अ डायबेसिक एसिड। तो मैंने आपको बताया हुआ है ना, दिस इज ये इसमें क्या है? फोस्फेट आयन है ना? इसमें कौन सा आयन है? फोस्फाइड आयन है। इसमें कौन सा आयन है? फोस्फाइड आयन है। और इसमें कौन सा आयन है? इट इज हाइपोफोस्फाइड आयन है। इसमें हाइपोफोस्फाइड आयन है।
है ना। फॉस्फेट में अगर आप H लगा देते हो, ये हमने पढ़ा हुआ है फॉस्फेट में, दिस इज फॉस्फेट ना, एट इज रिप्लेस्ड बाय IC एसिड, है ना, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, याद है आपको, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था हमने, एट इज रिप्लेस्ड बाय IC एसिड। तो फॉस्फेट है, अगर आपने H लगा दिया, कितने बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए होंगे, 3, तो H3PO4 हो जाएगा, एसिड बन जाएगा, तो 8 इज रिप्लेस्ड बाय IC एसिड, तो फॉस्फेट था तो फॉस्फोरिक एसिड। सिमिलरली इट विल बिकम phosphorus acid and that will become hypophosphorus acid. Just note it down, the structure. अगर हम बात करते हैं इनके, दिस इज अवर phosphoric acid, phosphoric acid, phosphoric acid. अगर मैं इनकी प्रिपरेशन की बात करूं, अगर मैं इनके प्रिपरेशन की बात करता हूं, सो प्रिपरेशन की बात करूं तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय व्हेन कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इसको बोन ऐश भी कहते हैं, है ना, इसे बोन ऐश भी कहते हैं, बोन ऐश हमारी हड्डियों में पड़ा रहता है, बोन्स में रहता है। कैल्शियम फॉस्फेट when it is treated with dilute H2SO4, मतलब जो कैल्शियम फॉस्फेट को आप ट्रीट करते हो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 and it is kept for a longer period of time, मतलब it is kept for several hours, तो कैल्शियम सल्फेट होता है, प्रिपेयर होता है, साथ में आपका H3PO4 is also being prepared। अगर आप इसको several hours तक खड़ा रखते हो तो ये नीचे कैल्शियम सल्फेट being insoluble ये सेटल डाउन हो जाता है और supernatant liquid it is filtered out। Have you understood? This is one of the method of preparing. This is one of the method of preparing phosphoric acid. It can be also be prepared. It can also be prepared by PCl5 का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, याद है हमने डिस्कस किया था लेक्चर में, अगर आप, है ना, याद है कि नहीं, अभी हमने थोड़े दिन पहले शायद डिस्कस किया था, इसका लोन पेयर इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल पे अटैक करता है, डू यू रिमेंबर और नॉट, तो आपको मिलता है आपका H3PO4 मिलता है along with HCl, एक मेथड ये है। तीसरा हाउ यू कैन प्रिपेयर इट, you can also prepare it phosphorus pentaoxide, P4O10 is phosphorus pentaoxide, है ना, एक्चुअली में हम ऐसे नहीं लिखते P2O5 because it exists as a dimer, तो P4O10 का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, again you will going to get phosphoric acid. So these are methods of preparing phosphoric acid. Phosphorus acid अगर आप PCl3 का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, वही सेम मैकेनिज्म है, इसका लोन पेयर इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक करेगा, जो हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं, तो हमें क्या मिलेगा, आपका H3PO3 along with HCl, इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, along with the release of HCl। वैसे ही P4O6 phosphorus trioxide, ये क्या था, phosphorus pentaoxide, and this is phosphorus trioxide, इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे then what you will do get, you will going to get as H3PO3। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। नाउ if we talk about the H3PO2, it is prepared when white phosphorus
is treated with NaOH, then you will going to get hypophosphorus acid. NaOH you can say when it is treated with alkali. It can be NaOH, it can be KOH. So these are some of the methods. These are some of the methods of preparing phosphoric acid, phosphorus acid, and hypophosphorus acid, which you have to know. Just note it down. Share. See, अगर आप H3PO3 का H3PO3 on being heated, it undergoes, this is third point. हमने स्ट्रक्चर लिखा, this is I suppose fourth point. पहला हमने स्ट्रक्चर बनाया था, दूसरा basicity of an acid, third point was reaction, how they are prepared, and fourth one कि what will happen अगर हम what is the effect of heating, है ना? आप हेडिंग डाल सकते हो इसमें, effect of heating. इंपॉर्टेंट है, अगर आप बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, H3PO3 को अगर आप हीट करते हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है H3PO4 along with release of poisonous gas, that is phosphine. This is known as phosphine. इसको हम पढ़ेंगे अभी. Phosphine gas is being released. ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 3 + x - 6 इज इक्वल टू ओवरऑल 0. इस पे +3 है, इस पे क्या हुआ 3 + x - 8, इस पे +5 है और इस पे क्या है -3 है ना, -3. तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन ऑल्सो, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन ऑल्सो. तो it is a redox reaction. Or acid, what type of redox reaction? It is a disproportionation reaction. It is a disproportionation reaction. हमने redox में पढ़ ही चुके हैं कि disproportionation reaction क्या होता है when the same species undergoes oxidation as well as reduction. Similarly, बैलेंस नहीं किया है मैंने इक्वेशन. H3PO2 को अगर आप हीट करते हो, अगर H3PO2 को अगर आप हीट करते हो, it also undergoes disproportionation reaction. It also undergoes disproportionation reaction. Okay? Now, if H3PO4 on being heated, it undergoes dehydration. कैसे, जरा हम देखते हैं. पहले आप ये नोट कर लीजिए. देखिए बेटा, अगर आप H3PO4 को, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड, जिसको आप कहते हो ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड, इसको अगर आप हीट करते हो 220 डिग्री सेल्सियस पे, 220 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, तो उसके 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए आप और माइनस वाटर मॉलिक्यूल हटा दीजिए आप, तो आपका बनता है H4, ठीक है, H4P2O7. अब ये इसे कहते हैं हम पायरोफोस्फोरिक एसिड. इसे क्या कहते हैं हम? पायरोफोस्फोरिक एसिड.
यानी कि अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स लोगे किसी एसिड का और एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे बाय हीटिंग, तो बाय हीटिंग आप एक 2 मॉलिक्यूल अगर आप लेते हो और बाय हीटिंग एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हो, तो जो बनता है 2 लिए तो क्या होगा H, अगर 2 मॉलिक्यूल लोगे अगर आप तो समझिए ना H6P2O8, इसमें से बाय हीटिंग मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो आपका ये बना। तो बाय हीटिंग को हम कहते हैं पायरो, तो हमें क्या मिलेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखें इट इज लाइक दिस। आप कैलकुलेट कर लें, P2 है ना O7, 1 2 3 4 5 है ना, अगर 1 2 3 4 5 6 7 और 4। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ pyrophosphoric acid and it is what type of acid, कितने H डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है 4, so it is a tetrabasic acid, it is a tetrabasic acid। इसको अगर आप फर्दर हीट करते हो 316 डिग्री सेल्सियस है ना, फर्दर हीट करोगे 316 डिग्री एसिड पे तो आपको मिलता है HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, इट वाज अबाउट साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मतलब यहां पर n की वैल्यू क्या है 3 है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, अब साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड को क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि pp बॉन्ड कितने हैं, जेई में पूछा गया था इसमें कि इसमें pp बॉन्ड कितने हैं। अब जरा वो स्ट्रक्चर बनाने पे ही पता चलेगा, और एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है बेटा, पहले एक ट्राइंगल बना लो P P P, फिर आप यहां पर ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, यहां डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो आंसर क्या था, pp बॉन्ड एक भी नहीं है, ठीक है। सो यानी कि फॉस्फोरिक एसिड को हमने देखा था H3PO3 और H3PO2 को अगर हम हीट करते हैं इट अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, व्हाइल H3PO4 को अगर आप हीट करते हो तो इट अंडरगोस डिहाइड्रेशन। तो अगर 220 डिग्री तक हीट करते हो देन यू गेट H4P2O7 दैट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड एंड इट इज टेट्राबेसिक इन नेचर। व्हाइल अगर 316 डिग्री तक हीट करते हो देन यू गेट मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और उसमें हमने कौन से मेटाफॉस्फोरिक पॉलिम की बात करी है, हमने साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड की बात करी है, जिसमें अगर आप देखें कि देयर इज नो pp बॉन्ड व्हिच वाज आस्क्ड इन जे। जस्ट नोट इट डाउन। राइट, अगर हम बात करें, अब देखो बेटा, अभी हमने जो इनका स्ट्रक्चर बनाया था, कुछ इनका स्ट्रक्चर बनाया था हमने, तो P डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया था, है ना। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया था, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया था, और इसका स्ट्रक्चर हमने कुछ
ऐसा बनाया था इसका, है ना। अब देखो बेटा, जो H डायरेक्टली P से अटैच है वो दैट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब अगर हम रिड्यूसिंग की बात करेंगे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करेंगे, तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? दिस वन। अगर P डायरेक्टली अटैच है H से, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो H3PO2 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू, इसमें कितने हैं? एक अटैच है, तो H3PO3 ये ऑर्डर है, आपको याद रखना है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग अमंग दीज थ्री ऑक्सो एसिड्स which of phosphorus, which is the strongest reducing agent? That is hypophosphorus acid is the strongest reducing agent। ठीक है, तो डायरेक्टली अटैच किसके साथ है? फोस्फोरस के साथ। कितने बेटा? 2। इट इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें डायरेक्टली अटैच फोस्फोरस से कितने हैं? 1। इसमें 1 भी नहीं है, सो इट इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। नॉट अ मतलब वीक रिड्यूस, मतलब आप कह सकते हो नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, not a reducing agent। ठीक है, while this will going to reduce Ag पॉजिटिव, मान लो AgNO3 ले लिया आपने, रिएक्शन करवा लिया, तो ये सिल्वर के सॉल्ट को सिल्वर मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देगा, है ना। HgCl2 का अगर आपने, है ना, मर्क्यूरी का सॉल्ट ले लिया तो मर्करी में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलर ये भी इट इज मच स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ H3PO3। ये भी आपका सिल्वर के सॉल्ट को आपको सिल्वर में कन्वर्ट कर देगा। हैव यू अंडरस्टूड? दिस यू हैव टू रिमेंबर। एग्जाम में ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? दिस वन इज योर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट नोट इट डाउन। If we talk about the acidic character, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें धोखा हो सकता है। बच्चा सोचेगा इस पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इस पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बच्चे के हिसाब से स्ट्रॉन्गर एसिड इस पे ये 3 एचआईएन्स रिलीज करेगा, बच्चे के हिसाब से ये 2 एचआईएन्स रिलीज करेगा और ये 1 एचआईएन्स रिलीज करेगा। तो बच्चा सोच सकता है कि जितने एचआईएन्स रिलीज होंगे उतना ज्यादा एसिडिक नेचर, बल्कि ऐसा नहीं है। जो H3PO2 ये एक्सेप्शन है बेटा, H3PO2 जो एसिडिक नेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ H3PO3 देन एज कंपेयर टू दैट ऑफ H3PO4 as compared to that of H3PO4। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये किसका ऑर्डर है? ये एसिडिक का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है बेटा? ये एसिडिक का ऑर्डर है, या फिर ये Ka की वैल्यू का ऑर्डर है। ठीक है, Ka की वैल्यू का ऑर्डर है। हायर द वैल्यू ऑफ Ka की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। एसिडिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, और हैव यू अंडरस्टूड? और pKa की वैल्यू डिक्रीज करती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली में इसके रीजन देखिए, आप रीजन थोड़ा समझ लीजिए। रीजन क्या है ऐसा एनॉमलस बिहेवियर का? पीछे रीजन क्या है? अगर आप देखें यहां पर जो ऑक्सीजन है ये -I लगाता है ना, आप है ना, ये क्या लगाता है बेटा? -I लगाता है। -I मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना, और है ना, और यहां पर अगर आप देखें, यहां है ना, यहां पर भी -I लगाएगा, यहां पर भी -I लगाएगा। अगर यहां पर जो -I लगाएगा, आपको पता है कि कौन से एचआईएन्स रिलीज होते हैं? जो H डायरेक्टली अटैच हो ऑक्सीजन पे। अगर ये -I लगाएगा तो खाली एक ही ऑक्सीजन, मतलब -I लगा रहा है, वो खाली एक ही ऑक्सीजन पे लगा रहा है ना। तो ये जब खींचेगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इसका -I इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 ऑक्सीजन एटम, है ना। अगर आप देखें इंडक्टिव इफेक्ट, अगर जो खींच रहा है
It is distributed over 2 oxygen atom, whereas in case of phosphoric acid जो माइनस I है, it is distributed over 3 oxygen atom, है ना। तो ज्यादा बॉन्ड कौन सा वीक हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ये ज्यादा वीक हो जाएगा क्योंकि पूरा माइनस I खाली, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन दिस ऑक्सीजन एटम। तो ये आसानी से एच रिलीज कर देगा, तो जो आसानी से एच रिलीज कर देता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो फॉस्फोरिक एसिड एक तरह से हमारा वीकर एसिड होता है। ये बच्चे धोखे में रहते हैं, सोचते हैं कि इस पे इट इज ट्राई बेसिक एटम ज्यादा एच रिलीज करेगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, बल्कि ये स्ट्रॉन्गर एसिडिक कौन होता है, H3PO2। तो जरा ये गलती ना करें, उसे समझें, ठीक है।